हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डन इज कि वी हैव स्टडीड अबाउट द बेसिक ऑफ अलजेब्रा, और हमने ये चीज सीखी थी किस तरह से आपको एग्जामिनर एक्सपेंड करने के लिए कह सकते हैं, किस तरह वो आपको फैक्टराइज करने के लिए कह सकता है। नाउ इन दीस सॉर्ट ऑफ फ्रैक्शंस अब हम स्टडी करेंगे फ्रैक्शंस को, एंड वी विल स्टडी द डिफरेंट सिनेरियो, एक डिफरेंट आपके पास क्वेश्चंस फ्रैक्शंस के किस किस तरह से कर आपके पास आ सकते हैं, राइट? So all of you guys are looking at the very first question. So आप पहले वाले सवाल को अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, so the first question is very much simple question, और ये आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो ना। What is happening in the first question is कि सबसे पहले first of all what you need to do is कि you are looking at this thing 15ac cube, right? And then you have 75a square b power 4 and c. So what you need to do is कि आपने यहाँ पे देखा कि न्यूमरेटर के अंदर आपके पास एक सिंगल है, तो अगर आप यहाँ से कैंसिल आउट करोगे so you'll write a -1 over है, और b आपके पास ऊपर नहीं है बट you have c over है, so आप यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे so आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। दैट मीन्स के ऊपर आपके पास 3 सीधे, नीचे एक सीधा, आपस में वो कैंसिलेशन हो गया। देयर इज अ वेरी मच सिंपल प्रोसेस, एंड यू गाइस ऑलरेडी नो कि यार 75 और 15 आपस में सिंपलीफाई हो सकते हैं। एज यू नो कि आपके पास 15 के टेबल में 75 कब आता है, हाउ मेनी टाइम्स, सो इट कम्स बेसिकली 5 times, so I'll 1 and I'll write 5. So completely जब मैंने इसको simplify कर दिया, so then I'll write c square and then 5a b power 4. So that's how you're going to do these kind of questions, और ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आपके पास इस तरह की चीजों के अंदर आ सकते हैं। So you need to prepare for these kind of questions. Now we are moving towards the next part. Next part के अंदर अगर आप यहाँ पे observe करो, so in the b part what is happening over here is, अगर आप b part यहाँ पे देखो तो it's written 2a plus b, right? So 2a plus b आपको पता है कि it cannot be simplified, or you cannot take a common between the two numbers, but in the denominator आप यहाँ पे common निकाल सकते हो। You have 4a square minus b square. We have already studied how to take up the common, so मैं इसे highlight कर रहा हूँ। So now what I need to do in this particular part is I'll write 2a plus b, and then I'll write 2a bracket minus b square. So now you can apply the identity a square minus b square. So that's how you're going to do it, 2a plus b, and then you will write 2a plus b, 2a minus b. So as you know कि आपके पास 2a plus b आपको न्यूमरेटर में ऊपर भी नजर आ रहा है, नीचे भी नजर आ रहा है, so you can cancel them both. So the final answer becomes 1 upon 2a minus b. All of you यहाँ तक कोई confusion है तो please मुझे बता दो if there is any sort of confusion. If it's clear, then please do write this thing in the chat option, and then we can move forward. Ahmad, Abdullah, Mahat, Amna, is it clear? Okay, perfect. Okay, so now when you're coming towards the C part, when you guys are coming towards the C part, now what is happening is c square plus 2cd minus 15d square. So first of all, what you need to do is कि आपको इसमें से क्या करना है, आपको factorization करनी है, and you are supposed to take out the factors. So first what will you do is कि in this particular part अगर आप यहाँ पे 15 को, अगर आप 15 obviously is the last term, so if you take out the prime factors of 15 and you want to create a middle term, this is going to be your middle term. और अगर आप यहाँ पे मिडिल टर्म क्रिएट करो और आप इसे ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करो, सो यू आर गोइंग टू राइट ओवर हियर 5cd minus 3cd minus 15d square upon, now what you need to do is कि आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, which is 4c, and inside the bracket you have c plus 5d. So again what will you do in the numerator, कि you will take the common between the first two term and the last two terms. So if you're taking between the first two terms, so it becomes c plus 5d, and this becomes minus 3d is a common, and inside the bracket it remains c plus 5d. मैंने कहा था कि अगर आप माइनस का साइन को बाहर निकालोगे, so you are going to change the sign. So now
this becomes 4c c plus 5d, and अगर मैंने दो उसमें लिखूंगा, so I'll write c minus 3d c plus 5d over 4c c plus 5d. Now I can cancel the two brackets, so ये मैंने cancel कर दिया. So now the answer becomes c minus 3d over 4c. So that's how you're going to solve these kind of questions. These are very much easy questions. ये आप आराम से solve कर सकते हो. So now in the D part, what is happening is कि D part आपके पास ये इस तरह के भी questions आपके पास आ सकते हैं. Now what is happening in this particular part is there is a multiplication sign, right? So whenever there is a multiplication sign, so what you need to do is कि आप again वही simplification का process start करोगे. First, always focus on the numerical value. ठीक है, आपके पास यहाँ पे numbers लिखे हुए हैं. So 4 one time, and it is coming in the table of 4 how many times? 2 times, and 5 one time, 3 times, right? ये आपने cancellation का process complete कर लिया, और आपको ये बात पता है कि यहाँ पे आपके पास 3 बच रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. So now you will focus towards the alphabet. जो आपके पास alphabets यहाँ पे आए हुए हैं. So you have one A over here, the other A is over here. तो दोनों A का आपने cancel out कर दिया. You're at -2 over here. And then you have a C, जो C के साथ आपस में cancel हो गया. B एक दूसरे के साथ cancel नहीं हो सकता. यहाँ पे B क्यूब है, यहाँ पे B 1 है. So collectively आपके पास जो combine करके हो रहे हैं, how many B's are there? You have 4 B's, right? और you have a single A. So that's how you're going to solve these kind of questions. तो ये आपके पास fraction के questions इस तरह से कर आ सकते हैं, ठीक है. So now we are moving towards the other type of question. ये आपके पास क्या होता है कि in the next step, is there any confusion? पहले तो मुझे ये बता दो कि इन तरह के questions के ना कोई confusion है या it's clear? Mema and the other people, please use the chat option. Chat पे मुझे सिर्फ लिख के बता दो कि it's clear, तो हम आगे move करें. Okay, good. Okay, so these type of particular questions, इसमें examiner last वाला part repeat. Okay, I'm repeating the last part. So what I have done in the last part is I have simplified it. मैंने सबसे पहले क्या करा कि I have cancelled out the 15 by 5. 5 के टेबल में 15 कब आता है बेटा? 3 टाइम आता है. 4 के टेबल के अंदर 8 टाइम आता है. तो मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस करा है. देन व्हाट आई हैव डन ओवर है कि यहाँ पे एक ए आपके पास था, ये एक ए आपके पास था, तो कलेक्टिवली 2 ए आपके पास थे डिनोमिनेटर के अंदर. मैंने उन दोनों को कैंसिल करा, ऊपर 3 ए थे, राइट? तो वो जब कैंसिल हुए तो आपके पास एक सिंगल ए बच गया. एंड नाउ व्हाट यू हैव डन ओवर हियर इज कि सी एक था, सी ये रहा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए. और आपने क्या करा, बी क्यूब यहाँ पे था और बी यहाँ पे था, दोनों डिनोमिनेटर्स के अंदर थे, तो ये कंबाइन हो गए एक दूसरे के साथ, तो इट बिकम्स बी पावर 4. ठीक है, होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ. ओके, so I'm moving towards this particular part. देखो, these are questions is very much common in your paper. Usually ये पेपर 1 के अंदर आता है और पेपर 2 के अंदर भी कभी कभार आ सकता है, और ज्यादातर ये आता भी है, और ये बहुत 2 से लेकर ये 3 से 4 मार्क्स का वेरी भी कर सकते हैं. So now what you are supposed to do in this particular part is कि देखो पहले वाले सवाल के अंदर if you guys are observing one clear thing over here, so you have 6A and 9A. So basically whenever you have a positive sign or a negative sign, that means कि आपको यहाँ पे क्या लेना है, दोनों का denominator exactly same करना है. So denominator same करने के लिए what you need to do is कि आपको LCM लेना पड़ता है. So 6 and 9. So what is the number which comes in the table of 6 and as well as in the table of 9? So you know here 6 और 9 के टेबल में आपके पास जो आता है नंबर वो आता है 18. So what will you do? How will you create an 18 over here? First you will try to multiply this thing by 3 and then you will multiply. Obviously आपको इससे 3 से multiply करवाना पड़ रहा है, so you will multiply the numerator by also 3 and this becomes by 2 and this will be multiplied by 2. So it becomes 21 over 18A plus 8 over 18A. So now as you know the denominators is exactly same, so you can combine the whole fraction and you can write 21 plus 8 over 18A. So it becomes 29 over 18A. अगर ये simplify हो रहा होता तो आप इसे simplify कर लेते, वरना यही it's going to be your answer. ठीक है, अब आपने क्या देखा कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा था कि एक्सप्रेस एज सिंगल फ्रैक्शन. सो नाउ आपके पास ये जो आंसर है ये आपके पास सिंगल फ्रैक्शन में है. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. यस बेटा बोलो. बोलो हम ना. माइक इज क्लोज, टाइप कर लो.
Okay, I can repeat this again. देखो, what you guys are doing in this particular part is, beta, whenever you have positive or a negative sign, that means that the denominator must be same. Now, what is a denominator? This thing is called a denominator, right? ये आपको बिल्कुल सेम करना है. तो सेम करने के लिए what I have done over here is कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया ताकि ये 18 हो जाए, एंड मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कराया ताकि ये 18 हो जाए. सो नाउ द डिनोमिनेटर इज एक्जेक्टली सेम. तो ये फ्रैक्शन आपके पास क्या हो गया? कंबाइन हो गया. मैमा, इज इट क्लियर नाउ? Okay, perfect. Amna, is there any further question? No, बेटा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा. आप इस तरह से नहीं करोगे. It's going to be a correct one, but you need to simplify that ना. तो आप कभी इस तरह से नहीं करते. So what you'll do always is कि आप LCM की तरफ जाते हो. ठीक है, हमेशा से आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ जाते हो, and then you will complete the quotient. ठीक है. Okay, now I'm moving towards the next part. So what is happening in the next particular part over here is कि now you guys are observing one single thing over here कि अगर आप यहाँ पे observe करना start करो, तो आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हो कि 3h minus 7 and 6 minus 5h are written over here. The main problem with this particular part is, if I'm going to write this whole thing, बल्कि इसको इसी पे कर लेते हैं. So these two are different brackets. ठीक है, इन दोनों में आपके पास क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सेम हो जाए. That cannot happen, right? So whenever this kind of situation occurs, so what you need to do is कि मैं क्या करूंगा, मैं completely इस वाले फ्रैक्शन को I'll multiply this by 6 minus 5h. Obviously अगर मैं डिनोमिनेटर से कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर से भी करूंगा 6 minus 5h, and I'll do exactly the same thing, और I'll multiply this thing by 3h minus 7, और मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करूंगा 3h minus 7. ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई करा? अगेन बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है, राइट? सो डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा? तो आप देखो कि यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट 3h minus 7 and then 6 minus 5h. So 11 multiplied by 6 minus 5h, bracket 6 minus 5h plus 2 3h minus 7. आपको सिंपली क्या करना है? You need to do the simplification process. So when you multiply 11 by 6, it becomes 66 minus 55h plus 6h minus 14 upon 3h minus 7, 6 minus 5h. And what you need to do now कि आप यहाँ पे क्या कर रहे होगे कि 66 and 14 को you'll simplify, and 55h जो h वाली की टर्म्स है उनको आप आपस में सिंपलीफाई करोगे. So collectively 66 minus 14 it becomes 52, and minus 55h and you have plus, so it becomes minus 49h upon 3h minus 7 and 6 minus 5h. Okay, now there is a one more common question जो आप सारे स्टूडेंट पूछना चाहोगे यहाँ पे, whether you need to multiply these two brackets or not. देखो, आप multiply यहाँ पे कर भी दो, there is no issue. अगर आप यहाँ पे multiply ना भी करो तो भी इसमें कोई इशू नहीं है. उसके रीजन ये कि both are acceptable. अगर आप मार्किंग स्कीम देखोगे तो एग्जामिनर ने दोनों के आपके पास आंसर्स एक्सेप्टेबल बोले हैं और वो दोनों पे आपको कंप्लीट मार्क्स दे रहा है. So this was the part B, which was an example. Now what I'm doing over here is in the next C part, what I need to do is कि you guys are observing one single thing. अब जिन लोगों ने लास्ट वाली प्रीवियस वाली क्लास मिस करी है उनको थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन मैं एक बार एक कॉन्सेप्ट वापस से रिपीट कर देता हूँ तो मे बी उन्हें कंफ्यूजन ना हो. सो व्हाट इज रिटन ओवर हियर इज 3 upon k square minus 1. बेटा सबसे पहले आपको जो पहला काम ये करना है कि what you are going to do is कि you are going to write k square minus 1 square. Now you all remember the identity of a square minus b square. So what you need to do is कि आपको एक बात पता है कि you are going to write k plus 1 and k minus 1 plus 2 upon k minus 1. So यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि you all know one clear thing over here is कि एक चीज की बड़ी मिसिंग है. वो चीज आपके पास क्या है कि k plus 1 k minus 1 दोनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, but there is one thing which is not over there. What is that thing? यहाँ पे k plus 1 का वो नहीं है, so you'll multiply this thing by k plus 1. Now the denominator will be same, so this becomes 3 plus 2 k plus 1, and this becomes k plus 1 and k minus 1. इसे simplify वगैरह करवा के you are going to write this thing
and that's how you're going to solve it. अब मुझे आप लोग ये बता दो कि is there any confusion up till now? कोई मसला तो नहीं है C part तक? कोई मसला है तो पहले मैं उसको कैसे करता हूँ, then I'm going to move towards the D part. प्लीज चैट पर अपना ऑप्शन यूज कर लो ताकि मुझे बता दो कोई मसला तो नहीं है. ओके, जबरदस्त जबरदस्त, सबको क्लियर है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग, तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर नहीं चाहिए और सब लोगों ने क्लास 6-7 में अच्छे तरीके से पढ़ा होता है, तो मेरे नहीं ख्याल कि इसमें किसी को मसला होना चाहिए. फिर भी अगर कोई मसला है तो प्लीज काइंडली पूछ लें और इसे क्लियर कर लो. ठीक है, ओके. सो आई एम मूविंग 3 by anything. Why 3? देखो 3 इसलिए नहीं होता, देखो मेरी बात सुनो. The point over there is, the main concept over there is कि हमारा denominator exactly same होना चाहिए. अब denominator में हमारे पास क्या है कि you have k minus 1 and k plus 1, right? तो इस denominator के अंदर मुझे एक बात बता दी, k minus 1 तो already हमारे पास है ना. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो सिचुएशन को, तो आप सिचुएशन को ये ऑब्जर्व करो कि k minus 1 तो ऑलरेडी है, बट देर इज वन पॉसिबिलिटी कि हमारे पास k plus 1 नहीं, तो तब जाके मैंने k plus 1 को मल्टीप्लाई करा. बेटा 3 को आप नहीं करोगे, 3 इज अ न्यूमरेटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना. द मेन आइडिया, द मेन होल कॉन्सेप्ट इज कि आपका न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर को सेम करें आप लोग. ठीक है, या देयर इज नो नीड. ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द डी पार्ट. बेटा डी पार्ट थोड़ा सा देखना, डी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है और ये आप लोगों ने बचपन में तो सॉल्व करा होगा, लेकिन काफी लोगों को इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा. तो आज मैं जरा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा इसके बारे में कि इसमें आपके पास होगा क्या. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑब्जर्विंग वन क्लियर थिंग ओवर हियर. जो एक क्लियर थिंग मैं यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस सिचुएशन के अंदर कि आई एम राइटिंग u+1 एंड देन आई एम टेकिंग 2 एज अ कॉमन नंबर. सो अगर मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ, सो हियर आई एम गेटिंग u-4, राइट. ये मुझे यहाँ पे आ गया, राइट. सो -u+2 ये मैंने यहाँ पे लिखा. एंड अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, इफ आई एम टेकिंग कॉमन एनीथिंग, अगर मैं कोई भी चीज कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर if I'm taking 3 as a common number, 12 minus 3u, if I'm taking 3 as a common number, so here I'm getting 4 minus u, right. बट यहाँ पे जरा मैंने इस चीज को साइड में इसलिए लिखा ताकि आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सको. देखो यहाँ पे ये दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम नहीं है. तो कभी भी इस चीज को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आई विल टेक कॉमन, मैं कॉमन तो लूंगा बट आई विल टेक -3 एज अ कॉमन नंबर. -3 बेटा कॉमन नंबर लेने से क्या फायदा होगा कि इनसाइड द ब्रैकेट आई विल गेट -4 प्लस u. ठीक है, ये मैंने ऐसे क्यों करा, मैंने जानबूझ कैसे करा, बिकॉज मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम चाहिए था. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टेप. ये जरा सुन लो, ये मोस्ट प्रोबेबली ये आपके पास नहीं आएगा, लेकिन अगर कभी कभार थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई तो इट कैन कम. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पर्टिकुलर स्टेप. व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज कि मैंने यहाँ पे 12 - 3u के अंदर आई हैव टेकन -3 एज अ कॉमन. -3 जब मैंने कॉमन निकाला तो बेटा 12 के पास क्या था, प्लस का साइन था. मैंने कहा था जब भी मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा तो जिसके पास प्लस होगा माइनस हो जाएगा, जिसके पास माइनस होगा उसके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट. अब जरा इसको मैं रीअरेंज करता हूँ. सो आई राइट u+1 to u-4. ठीक है, ये वाला माइनस मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला माइनस दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स अ पॉजिटिव साइन, सो इट बिकम्स u+2. और मैं जरा -4 को जरा एडजस्ट करता हूँ थोड़ा सा, इसको इस तरह से कर, आई राइट u-4. सो नाउ आपने ये सिचुएशन यहाँ पे ये ऑब्जर्व करी कि u-4 बेटा u-4 दोनों तो एग्जैक्टली सेम हो गए, बट देयर इज वन मोर थिंग. यहाँ पे हमारे पास नंबर सेम नहीं है. यहाँ पे 2 आपके पास नजर आ रहा है, यहाँ पे यू हैव 3. सो नंबर्स को सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यू विल मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 3. आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है और आपको इसे मल्टीप्लाई कराना है 2 के साथ, राइट. सो नाउ व्हाट विल हैपन, मैं थोड़ा सा स्टेप कर लूंगा, बाकी आप लोग खुद आई थिंक कर सकते हो. सो इट बिकम्स 3u+1 plus 2u+2 अपॉन वी आर गोइंग टू राइट 6u-4. ठीक है, अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई करवा के खुद कर लेना और कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछ लेना. एंड यू हैव द सॉफ्ट फाइल जिससे आप लोग यहाँ पे रीचेक भी कर सकते हो. सो दैट्स हाउ द क्वेश्चन ऑफ सिंगल फ्रैक्शन कम्स. और ये आपके पास इसी तरह से आता है, इससे ज्यादा मुश्किल कोई भी सवाल नहीं आता. इफ देयर इज एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज मुझसे पूछ लो ताकि हम आगे फिर फर्दर मूव करें. ठीक है, कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन, और इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन प्लीज मुझे चैट ऑप्शन में बता दें ताकि हम आगे अच्छे तरीके से मूव कर सकें. उमैमा, अब्दुल्ला,
इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन मुझे बता दो। ओके परफेक्ट है। ओके देयर आर टू मोर केसेस व्हिच आर लेफ्ट। ओके परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, सबको क्लियर है। ओके अब देखो ये बड़ा मेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मूला, दिस इज अनदर केस। मैं आपको आज ये बात कहता हूँ कि इफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आपको इंशाल्लाह ताला फिजिक्स में भी मसला नहीं होगा। और मुझे केमिस्ट्री का मुझे याद नहीं इतना, बट फिजिक्स में ऐसा होता है हमारे पास कि यूजुअली द एग्जामिनर आस्क यू टू मेक अ सब्जेक्ट, राइट, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेटा इसके अंदर इतनी अच्छी तरीके से ग्रिप कर लो कि आपको आगे आने वाले, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस काइंड ऑफ थिंग। जब मैं इंजीनियरिंग वगैरह कर रहा था तो आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस काइंड ऑफ, मेरी ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ओके द फर्स्ट थिंग विच द एग्जामिनर इज आस्किंग इज, देखो सब्जेक्ट बनाना, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सब्जेक्ट? बेटा अलोन कर दो बिल्कुल, या उस एक पर्टिकुलर चीज को आइसोलेट कर दो। द फर्स्ट थिंग विच द एग्जामिनर इज आस्किंग इज कि यार आपके पास पहली उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन, और इसने बोला हुआ कि बेटा बी को आप क्या बनाओ, सब्जेक्ट बना लो। सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू डू इज कि टू यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ यू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर साइड ऑन द राइट हैंड साइड, टू यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो उस तरफ जाके व्हेन यू आर शिफ्टिंग टू ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, सो व्हाट इज हैपनिंग इज टू यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट बिकम्स a plus b and h। नाउ h इज बीइंग मल्टीप्लाइड, h उस तरफ चला जाएगा तो वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इट बिकम्स लाइक दिस, सो इट बिकम a plus b। आपको b को आइसोलेट करना है, so a will be shifted on that side, so it becomes 2a upon h minus a equals to b। so b आपके पास इस तरह सब्जेक्ट बना है, so finally you are going to write b equals to 2a over h minus a। तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से अगर सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू मेक अ सब्जेक्ट। अच्छा नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, ये भी आपके पास अक्सर होगा व्हेन यू गाइस विल डू अ मेंसुरेशन क्वेश्चन। तो मेंसुरेशन के सवालों में आपसे हमेशा से वॉल्यूम दे दी जाएगी, आपको बोलेंगे कि रेडियस निकाले, तो आप इसी तरह से कर निकालेंगे। सो नाउ व्हाट विल यू डू अगेन बेटा, रिमेंबर वन थिंग, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन यू हैव 4 बाय r क्यूब। बेटा यू नीड टू मेक सब्जेक्ट, राइट, आपको सब्जेक्ट क्या बनाना है, आपको r को सब्जेक्ट बनाना है, राइट। तो 4 पाई यहाँ पे आपके किसी भी काम का नहीं है। फर्स्ट एच को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा, एच यहाँ पे क्या हो रहा है, एच यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, उस तरफ अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपको करवाना है। ओके अब देखो, अब आपके पास क्या होगा, यू हैव 4 पाई, अब 4 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यू विल शिफ्ट 4 पाई ऑन दैट साइड, सो इट बिकम्स, इट कम्स ऑन द डिवीजन साइड, सो r क्यूब। अब अगर आपको क्यूब यहाँ पे रिमूव करना है तो बेटा आपको पता है क्यूब रिमूव करने के लिए यू विल अप्लाई द क्यूब रूट ऑन बोथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्वेशन। सो नाउ इट बिकम्स r इक्वल्स टू क्यूब रूट 3v over 4 pi, sorry, so that's how you are going to make a subject। अच्छा मैं लास्ट वाला पार्ट कर लेता हूँ। in the last part what you are supposed to do is you have to make u as a subject। so u को subject बनाने के लिए क्या करोगे, first of all you will shift all of the things on that side, so it becomes minus 2as equals to u square, so u square equals to v square minus 2as। again आपको क्या लगाओगे, आप स्क्वायर रूट लगाओगे ऑन बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, सो यू विल अप्लाई द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से क्या होगा कि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट यू विल राइट द टू साइंस, और ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 2as। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ सब्जेक्ट, तो ये आपके पास सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दिस वाज अनदर टाइप। लास्ट में आई एम गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशंस, उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे बताओ, इज देयर एनी फर्दर कंफ्यूजंस? यहाँ पे भी मेरे ख्याल से सबको बड़ा सिंपल सा लगता होगा, ये भी चीज बड़ी सिंपल होगी। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। ऑल क्लियर, परफेक्ट हो गया। ओके गुड। ओके सो नाउ वी आर बेसिकली सॉल्विंग इक्वेशन। बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था the main difference between equation and expression। मैंने आपको बताया था कि whenever you like you have a sign of equals to, say it becomes an equation, ठीक है। equals to का साइन नहीं होगा, वो एक्सप्रेशन आपके पास कहलाएंगी। तो ये आपको क्लियर इस बात का अंदाजा है। अब मैं जरा बेसिक से
चीजों को सॉल्व कर रहा हूँ, आप तो डायरेक्टली करते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं। देखो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है x plus 9 equals to -5. So now what is happening over here is कि I want to shift that 9 particularly on that particular side. So इसका बैकग्राउंड हमारे पास होता है कि +9 को जब भी यहाँ पे करना होता है तो हम क्या करते हैं, on both of the sides of the equation, दोनों साइड पे इक्वेशन की, बिकॉज मुझे यहाँ से 9 हटाना है तो मैं क्या करूंगा, -9 और -9 दोनों साइड पे लगाऊंगा, राइट। सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज कि यहाँ से ये 9 और 9 आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो इट बिकम्स x इक्वल्स टू एंड -5 -9 इट बिकम्स -14। अब आप लोगों ने ये स्टेप क्या करा होगा, ये डायरेक्टली करा होगा, लेकिन ये डायरेक्टली ही करना है आपको, आप इतना बेसिक से नहीं करते, लेकिन इस चीज की बेस आपको बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों की पहली क्लास है इसकी, ठीक है। यू कैन डू इट डायरेक्टली। आप डायरेक्टली कैसे करते थे, आप डायरेक्टली इस तरह से करते थे कि x plus 9 equals to -5, आपने बोला +9 है, यहाँ पे जाके वहां पे शिफ्ट कर दो, सो -9 आपके पास आ गया, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट अ -14। आप यहाँ से इस तरह से कर रहे हो, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता के कर रहा हूँ, लेकिन यू कैन डू इट डायरेक्टली, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके 4x equals to -28, so now what will happen over here is कि what I'll do कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों साइड्स के ऊपर इक्वेशन की I'll divide it by 4। 4 से डिवाइड करने से क्या फायदा होगा, दिस 4 will be cancelled and 4 one time 7 time, so the answer becomes x equals to -7। so that's how you're going to solve it। ये आपके पास इस तरह से सॉल्व होंगे। Okay, now what will happen in the C part? C part में आपके पास क्या होगा, you have a 1/3। so 1/3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 equals to 7, so you'll multiply 3 by both of the sides of the equation, दोनों साइड से आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, so now 3 will be cancelled, so it becomes x equals to 21। अगेन आई एम रिपीटिंग, बेटा आप डायरेक्टली कर लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इस चीजों का बैकग्राउंड बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो नाउ यू हैव 11/2x - 1 equals to 4। आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, सो व्हाट विल यू डू इज कि ये वाला पूरा ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सो इफ आई शिफ्ट दैट होल ब्रैकेट ऑन दैट साइड ऑफ द इक्वेशन, सो इट बिकम्स 11 equals to 4 2x - 1। so then I'll completely solve it, 4 into 2x it becomes 8x - 4, ठीक है। और यहाँ पे आपने शिफ्ट करा दिया 11 plus 4 8x, and that's how you're going to solve it, 15 equals to 8x, so the value of x becomes, मैं जरा इसको simplify, 15/8, so that's how you're going to solve it, ठीक है। So this was all about the basic algebra। यहाँ पे आपका basic algebra जो है वो खत्म हो जाएगा, and from the next onwards class हम लोग start करेंगे इंशाल्लाह ताला quadratics। so all of you मुझे एक बात बता दो कि if there is any sort of confusion तो प्लीज मुझे बताओ, सब कुछ क्लियर है तो भी मुझे बता दो, and I need the whole feedback, सारे स्टूडेंट से मुझे फीडबैक चाहिए। परफेक्ट हो गया। अच्छा ऑल ऑफ यू सबने कॉपी भी कर लिया, कोई मसला तो नहीं है? Yeah, I'll give you the practice now, I'll give you the whole worksheet बेटा। वो टॉपिकल पासवर्ड्स मैंने सब बनाए हुए हैं, अगर आप वहाँ पे ग्रुप पे जाओगे ना तो वहाँ पे एक फाइल होगी, अगर वो नहीं मिली तो मुझे बता देना, I'll send the file again। और वहाँ पे फाइल में क्या होगा कि आपके पास सारे क्वेश्चन होंगे। राइट नाउ वी हैव सम मिनट्स लेफ्ट, यहाँ पे हमारे पास कुछ 7 मिनट्स है। आज की क्लास हमारी ऑब्वियसली हमारी 40 मिनट्स की क्लास होगी, and then from Wednesday onwards we are going to do a 1 hour or 1.5 hour session। तो हम दो स्प्लिट करेंगे 40 मिनट्स के सेशंस के ऊपर, और फिर हम थोड़े लंबे सेशंस की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें कोर्स बड़ा तेजी से कवर अप करना है। अच्छा मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, मेरे ख्याल से सबको ये चीजें क्लियर है। नाउ व्हाट विल यू डू इज कि यू विल ट्राई आउट दीस क्वेश्चंस। मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, लास्ट क्लास में वी हैव डन सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आप लोगों ने आराम से मेरे ख्याल से कर लिए थे, तो आई गेस इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। Okay, now all of you please try out these two questions। अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, I'll try to solve these kind of question for you। ये जरा इसका रेफरेंस आप लोग लिख लें, यहाँ पे बॉटम पे रेफरेंस आपको दिख रहा होगा। दिस इज बेसिकली पेपर 21 अक्टूबर नवंबर 2011, ठीक है। जरा कर लो, ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, ये मार्किंग स्कीम के साथ आपको हमेशा से मिलेगी।
try out this question, and if there is any confusion, please do let me know. मैं आप लोगों को help कर दूंगा. All of you, I'll try to help you out. So in the first part, what you need to do is कि आपको यहाँ पे ये बात पता है कि if you observe this particular part, देखो दोनों fractions आपके पास क्या हैं, different है. So whenever the two fractions are totally different, so 5 over p minus 2 minus 4 2p plus 3. So what will you do is you'll multiply the whole fraction 2p plus 3, ठीक है, and again you will multiply as by 2p plus 3. आपने ये multiply करवा देना, and this thing by p minus 2 p minus 2, ठीक है. So now what will happen, 5 2p plus 3 minus 4p minus 2 upon 2p plus 3 p minus 2. So it becomes, when you multiply 5 by 10 or 2p, so it becomes 10p plus 15 minus 4p plus 8 over 2p 6p 15 plus 8 is becomes 23. So that's how you're going to solve it. ठीक है, all of you, is that thing clear? कोई मसला है? ये मार्किंग स्कीम आपके पास बॉटम पे होगी. So you guys can check your answer कि whether आपने आंसर सही निकाला या नहीं निकाला. आप आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है. और ये वाला पार्ट कर लो, बी वाला और डी वाला पार्ट मेरे सामने कर लो कि if there is any confusion तो मैं आपको हेल्प आउट कर दूं. अच्छा, एक और बात प्लीज आप लोग याद रखें कि we haven't done quadratic equations and simultaneous equations. In the next class, जो Wednesday वाली क्लास होगी, there will be around 1.5 hour की वो क्लास होगी, and I'll try to complete the whole quadratic equation in one entire class, ताकि वो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, बिकॉज आप लोगों ने सबने 9th क्लास के ना बड़े अच्छे तरीके से करा हुआ, ठीक है. बहुत सारे लोगों ने करा हुआ, किसी ने नहीं भी करा तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है. लेकिन उसका जो एक क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है ना, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला पार्ट, वो बड़ा मेजर सा पार्ट है. तो वो हम ट्राई करेंगे कि वो हम एक क्लास पे कंप्लीट करें, और फिर हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरफ जाएंगे. तो प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आपको नजर आ जाए. लेकिन इन तरह के सिंपल से सवाल आप आराम से कर सकते हो. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, डी वाला पार्ट कर लिया सॉल्व किसी ने, या अभी भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो. बेटा सेम टाइम ओ लेवल मैथ्स का जो है ना, वो आप लोगों का टाइम फिक्स हो गया 10 PM का. एडमेस का जो टाइम है वो मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म कर लूंगा, क्योंकि मेरा स्केड्यूल ना हर सेंटर का थोड़ा सा वो हो रहा है, थोड़ा सा बदल रहा है. तो वो जैसे ही फिक्स हो जाएगा तो मैं आपको एडमेस का ही बता दूंगा. मोस्ट प्रोबेबली टुमारो यू गाइस आर हैविंग अ क्लास ऑफ एडमेस, तो वो मैं उसका टाइम कंफर्म कर लूंगा कि वो कौन से टाइम पे मैं क्लास लूंगा.
Okay, I'll solve the d part. D part मैं solve कर लेता हूँ, मसला नहीं है. So what is happening in the d part is कि it's written q square minus 1. बेटा q square minus 1 लिखा हुआ है. So you all know q square minus 1 square. And what will you do is 2q square minus 3q. आप इसके लिए क्या करोगे? You guys will multiply the whole thing ना. अगर आप यहाँ में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, so it becomes 2q square, और मिडिल टर्म ब्रेकिंग का प्रोसेस करते हो, so it becomes minus 2q minus q plus 1, right? ठीक है, ये हो जाएगा. So it becomes q plus 1 and q minus 1. And now in the denominator आपने यहाँ पे क्या कॉमन लिया? You will take common 2q. तो ये आपके पास हो गया q minus 1 and minus 1 अगर आपने यहाँ पे कॉमन लिया, so it becomes q minus 1 inside the bracket. So this becomes q plus 1, q minus 1, and then you have 2q minus 1 and q minus 1. बेटा q minus 1 ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ. So it becomes q plus 1 over 2q minus 1. So that's how you're going to solve it. ठीक है.